روہی اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ شہر اولیاء کا تاریخی حسن ہوگا بحال۔ اولیاء کرام کے مزارات اور تاریخی مقامات کو ملے گا ایک نیا حسن۔ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ لاہور کے وفد کی ملتان آمد ہوئی۔ کمشنر ملتان کو سیاحتی مقامات کی بحالی پلان پر بریفنگ دی۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے ویژن کے مطابق سیاحت کے فروغ کے بارے میں اقدامات کا آغاز کر دیا گیا۔ حکومت پنجاب نے ملتان کی صدیوں پرانی مذہبی اور ثقافتی اہمیت کو اجاگر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ شہر کے تاریخی مقامات کی بحالی بارے خصوصی ٹیم ساجدہ ونڈل کی قیادت میں کمشنر آفس آئی اور بریفنگ دی۔ قاسم باغ اور مزارات کی بحالی بارے مختلف امور پر تفصیلی بحث اور غور کیا گیا۔ کمشنر ملتان ڈویژن جاوید اختر محمود نے کہا کہ اولیاء کرام کی دھرتی کو روشنیوں کا شہر بنانے کے لیے عملی اقدامات کا آغاز کر دیا گیا۔ اولیاء کرام کے مزارات ملتان کی شان اور اس خطے کی پہچان ہے۔ ملتان میں قلعہ کونا قاسم باغ کی ایک بڑی خاص اہمیت ہے اور اس پہ تاریخی حیثیت اس کی ہے ہی ہے۔ اس کی خوبصورتی کے حوالے سے بھی اس کی اہمیت ہے، اس کی ٹورزم کے حوالے سے اہمیت ہے، پھر لوگوں کے خاص لگاؤ ہے مزارات سے۔ اجلاس میں ڈائریکٹر تعلقات عامہ سجاد جہانیہ، ڈپٹی ڈائریکٹر ٹیکنیکل محمد عرفہ، میونسپل افسر زاہد اقبال، ایس ڈی او آرکیالوجی غلام محمد، ریجنل مینیجر ٹی ڈی سی پی اشر اقبال، دیگر افسران اور سول سوسائٹی کے افراد نے شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے شہر میں صحت کی سہولیات کی ہوگی فراوانی۔ ٹیچنگ ہسپتال ڈی جی خان میں 170 بیڈز پر مشتمل او پی ڈی اور ایمرجنسی بلاکس بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ اسٹینڈنگ کمیٹی نے نئے بلاکس کے لیے 2 ارب روپے کی منظوری دے دی۔ مشیر صحت حنیف خان پتافی نے سرائیکی عوام کو خوشخبری سنا دی۔ محسن الملک کی رپورٹ میں مزید دیکھیے۔ پنجاب سردار عثمان خان بزدار کے ضلع ڈیرہ غازی خان میں صحت کے نئے منصوبے شروع ہونے جا رہے ہیں۔ ٹیچنگ ہسپتال میں ایمرجنسی اور نیا او پی ڈی بلاک بننے جا رہا ہے، جس کے لیے اسٹینڈنگ کمیٹی نے 2 ارب روپے کی منظوری دے دی۔ ٹیچنگ ہسپتال ڈیرہ غازی خان میں نیا او پی ڈی بلاک اور نیا ایمرجنسی بلاک، جس کے لیے اسٹینڈنگ کمیٹی نے 2 ارب روپے منظور کر دی، اور انشاءاللہ جو کمنگ بجٹ میں یہ پروجیکٹ انشاءاللہ یہ شامل ہوگا کہ ڈیرہ غازی خان کے ٹیچنگ ہاسپٹل میں نیا ایمرجنسی بلاک اور نیا او پی ڈی بلاک بنے گا۔ مشیر صحت حنیف پتافی کا مزید بستروں پر مشتمل ہوں گے۔ بلاکس بننے کے بعد ٹیچنگ ہسپتال ڈی جی خان نشتر سے بھی بڑا بن جائے گا۔ ٹیچنگ ہاسپٹل اس وقت 1000 بیڈ کے اوپر ہے، 350 بیڈ ابھی نئے ہم نے اپروو کروا لیے ہیں، ایم سی ایچ مدر اینڈ چائلڈ، اور 170 یہ بیڈ میں اس میں تو نشتر سے بڑا ہاسپٹل بن جائے گا انشاءاللہ۔ مشیر صحت کا کہنا تھا کہ صحت کے حوالے سے عوام کو اسپتالوں میں تمام سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ ڈی جی خان کے دیگر اسپتالوں کو بھی اپ گریڈ کیا جا رہا ہے۔ کیمرہ مین عثمان نواز کے ساتھ محسن الملک، ڈیرہ غازی خان۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ آئندہ پولیس ملزمان کو ہتھکڑی سے پہلے دستانے پہنا کر عدالت پیش کرے گی۔ رحیمہ خان میں جوڈیشل ریمانڈ پر پیش ہونے والے ملزم کے حق میں جج کا فیصلہ۔ خون جما دینے والی سردی میں لوہے کی ٹھنڈی ہتھکڑیاں تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ ملزم نے مقامی مجسٹریٹ ندیم اصغر ندیم کے سامنے ٹھنڈ سے بچانے کی اپیل کی تھی۔ آئندہ پولیس ملزمان کو ہتھکڑی سے پہلے دستانے پہنا کر عدالت پیش کرے۔ رحیمہ خان میں جوڈیشل ریمانڈ پر پیش ہونے والے ملزم کے حق میں جج کا فیصلہ۔ خون جمانے والی سردی میں لوہے کی ٹھنڈی ہتھکڑیاں تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ ملزم نے مقامی مجسٹریٹ ندیم اصغر ندیم کے سامنے ٹھنڈ سے بچانے کی اپیل دائر کر رکھی تھی۔ بہاولپور چڑیا گھر کے چیتل ہرنوں کو زہر کس نے دیا؟ گزشتہ روز 7 ہرنوں کی ہلاکت۔ ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں زہر کا عنصر شامل۔ روہی کی خبر پر صوبائی وزیر سمسام بخاری کا نوٹس۔ ڈائریکٹر جنرل وائلڈ لائف پنجاب سے 24 گھنٹوں میں رپورٹ طلب۔ 24 گھنٹوں میں رپورٹ طلب کر لی گئی ہے۔ بہاولپور چڑیا گھر کے چیتل ہرنوں کو زہر کس نے دیا ہے؟ گزشتہ روز 7 ہرنوں کی ہلاکت کا معاملہ۔ ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں زہر کا عنصر شامل ہے۔ روہی کی خبر پر صوبائی وزیر سمسام بخاری کا نوٹس۔ ڈائریکٹر جنرل وائلڈ لائف پنجاب سے 24 گھنٹوں میں رپورٹ بھی طلب کر لی گئی ہے۔ گزشتہ روز 7 ہرنوں کی ہلاکت کا معاملہ۔ ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں زہر کا عنصر سامنے آیا ہے۔ روہی کی خبر پر صوبائی وزیر سمسام بخاری کا نوٹس۔ ڈائریکٹر جنرل وائلڈ لائف پنجاب سے 24 گھنٹوں میں رپورٹ طلب کر لی گئی۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے تعلیمی ادارے کھولنے کا عندیہ دے دیا۔ کہتے ہیں چاہتا ہوں تعلیمی ادارے کھول دیے جائیں، جو ہی کرونا کے حوالے سے صحت کی صورتحال بہتر ہوگی بچوں کے لیے درسگاہوں کے دروازے کھول دیے جائیں۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے تعلیمی ادارے کھولنے کا عندیہ دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ چاہتا ہوں تعلیمی ادارے کھول دیے جائیں،
जो ही कोरोना के हवाले से सेहत की सूरत हाल बेहतर होगी, बच्चों के लिए दरसगाहों के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने ये ट्वीट किया है, कहते हैं कि चाहता हूं तालीमी इदारे खोल दिए जाएं। जो ही कोरोना के हवाले से सेहत की सूरत हाल बेहतर होंगी, बच्चों के लिए तालीमी इदारों के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की जानिब से ट्वीट सामने आया है। आटे के बहरान की बात करेंगे। सरगोदा में आटे का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। शहर में आम मार्केट से आटा गायब हो गया है। 20 किलो का थैला 1000 रुपए में फरोख्त होने लगा है। सहूलत बाजार में आटे की खरीदारी के लिए शहरियों का रश, कतारें लग गई। सरगोदा में आटे का बहरान आए रोज का मामूल बन गया। जिला इंतजामिया आटे बहरान पर काबू पाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रही है। आम मार्केट से आटा गायब, ब्लैक में महंगे दामों फरोख्त होने लगा। भाई बाजार में आटा मिल नहीं रहा, अगर मिलता भी है तो ब्लैक में 1000 से 1100 के करीब मिलता है। 40 लाख आबादी के शहर सरगोदा में फी फ्लोर मिल रोजाना की बुनियाद पर पिछले साल के मुकाबले में 100 किलो की बोरी के हिसाब से 10 बोरियां कम करके सिर्फ 26 बोरियां फराहम की जा रही हैं, जो कि इंतहाई कम है। जबकि सरगोदा से आधी आबादी के जिलों में सरगोदा से डबल कोटा फराहम किया जा रहा है। इधर आटा मिलता है और कम तादाद में होता है और बंदे बहुत ज्यादा होते हैं। आटे का बहरान मामूल बनने के बावजूद जिला इंतजामिया की नाअहली या अदम तवज्जो के बाइस आटे की मिलों का कोटा नहीं बढ़ाया जा रहा, जिसके बाइस आम आदमी शदीद मुश्किलात का शिकार है। सरगोदा की जिला इंतजामिया की अदम तवज्जो कहें या नाअहली, सरगोदा में एक दफा से फिर आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सरगोदा के शहरी दर बदर की ठोकरें खाने लगे। कैमरामैन तनवीर हुसैन के साथ जुनेद खान, रोही, सरगोदा। आटे के बाद चीनी की कीमतें भी बढ़ गईं। रहीमिया खान में दरामद शुदा चीनी भी कीमतों पर काबू नहीं पा सकी। जिले भर में चीनी की कीमत को फिर पर लगना शुरू। 2 रोज में चीनी 4 रुपए फी किलो महंगी हो गई। 80 रुपए फी किलो में फरोख्त जारी है। चीनी की किल्लत और रेट मजीद बढ़ने का खदशा है। चीनी की कीमतें हैं कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हुकूमत ने चीनी की कीमत को कंट्रोल करने के लिए चीनी इंपोर्ट की और फिर गन्ने का क्रशिंग सीजन भी शुरू हो गया। क्रशिंग सीजन में कुछ देर चीनी की कीमत कम हुई, अब फिर से बढ़ने लगी है। चीनी की कीमत 74 रुपए फी किलो तक आई, फिर 2 रुपए इजाफे के साथ 76 रुपए फी किलो तक फरोख्त होती गई और अब फिर चीनी की कीमत में पिछले 2 दिनों में 4 रुपए फी किलो इजाफा हुआ। जो चीनी की कीमत फी किलो 80 रुपए होगी। सदर करियाना एसोसिएशन चौधरी फलक शेख का कहना है कि चीनी की कीमत को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत को इक़दामात करना होंगे। चीनी की कीमत में मजीद तेजी मुतवक्के है। गवर्नमेंट को चाहिए कि बजाय 10 दिन के बाद कोई होश के नाखून ले, अभी मेहरबानी करे, कोई मार्केट में कंट्रोल करे ताकि चीनी का रेट बढ़ न सके, नहीं तो चीनी इसमें और इजाफा हो सकता है। किसानों से शुगर मिल्स गन्ना 200 रुपए फी मन खरीद रही है। गन्ने की कीमत तो नहीं बढ़ी, मगर क्रशिंग सीजन के दौरान ही चीनी की कीमत बढ़ना शुरू हो गई है। कैमरामैन अनवर सवेल के साथ हासिम सदीक, रोहित, रहीमिया खान। बहावलपुर की बात करेंगे। बहावलपुर में गंदम को खाद की अशद जरूरत है, लेकिन डीएपी की कीमतों में इजाफा हो गया है। फी बोरी 600 रुपए इजाफे से किसान परेशान है। हुकूमत की जानिब से फी बोरी सब्सिडी भी किसानों को नहीं मिल रही। गंदम के ज़राई महासिल में इजाफा होना शुरू हो गया। बहावलपुर में गंदम की पैदावार में कमी का खदशा है। खादों के रेट में इजाफा हुआ। खाद फी बोरी 600 रुपए महंगी, जबकि हुकूमती सब्सिडी भी बंद हो गई। अब किसानों को फी बोरी 1200 रुपए इजाफी अदा करना होंगे। किसानों का कहना था कि हर बैग पर सब्सिडी का ऐलान है, मगर मिलती नहीं। दुकान वालों से रब्ता नहीं किया, लेकिन हमने मैसेज किया है, अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। दूसरी जानब खाद डीलर्स का कहना था, आलमी मार्केट में खाद की कीमतों में इजाफा हुआ है, हमारी करेंसी भी डीवैल्यू हुई, जो खाद की कीमत में इजाफा का सबब बनी है। मार्केट में खाद वाफर दस्तयाब है, मगर महंगी हो चुकी है। मार्केट के अंदर अवेलेबिलिटी तो है, कोई मतलब इस तरह की शॉर्टेज वगैरह का तो पोजीशन नहीं है, लेकिन इस टाइम मतलब इंटरनेशनल मार्केट में जो 320-25 डॉलर पे पर टन मिल रही थी, वो नियर अबाउट अब 400 पर टन जा चुकी है। उस हिसाब से 550 से 600 रुपए पर बैग इजाफा हो चुका हुआ है। दूसरी जानब महकमा ज़राअत के अफसरान का कहना है कि जिला में महंगी खाद फरोख्त करने वाले 12 डीलर्स पर मुकदमात और 4,75,000 रुपए के जुर्माने भी किए गए हैं। बहावलपुर की मार्केट में खाद तो वाफर मौजूद है, लेकिन किसान की कुव्वते खरीद ना होने की वजह से खाद के बड़े बड़े स्टॉक गल्ला मंडी में वैसे ही पड़े हैं और खाद की कीमत के ऊपर किसान आज भी शिकवा करना नजर आता है। कैमरामैन फराज हमीद के साथ तैयब सैफ, बहावलपुर।
उधर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दी जाने वाली मराहत 31 दिसंबर को खत्म हो रही हैं। मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और इस शोबे से जुड़े अफराद ने मराहत की मुद्दत में इजाफा करने के लिए हुकूमत से दरख्वास्त की है। अमजद मलिक की रिपोर्ट। पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दी जाने वाली मराहत का 31 दिसंबर को खात्मा होगा। मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर ख्वाजा सलाहुद्दीन का कहना है कि इतने कम अरसे में मुआशी बेहतरी बहुत मुश्किल है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से 100 से ज्यादा इंडस्ट्रियां मुंसलिक हैं। इस साल कोरोना की वजह से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को पहले भी बहुत नुकसान हुआ। हुकूमत जून 2021 तक मराहत की तारीख में तोसी करे ताकि मस्बत समरात मिल सकें। जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज का स्पेशली प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो एमनेस्टी दी है, जो कि 31 दिसंबर 2020 को ख़त्म हो रही है, इसमें तमाम बिजनेस कम्युनिटी और तमाम मेरी बाकी चैम्बर्स में भी बात हुई है। सबकी तरफ से ये हम गुजारिश करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब को कि इसको एक्सटेंड किया जाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आमिर मंजूर अंसारी का कहना है कि हुकूमत कंस्ट्रक्शन को दी जाने वाली मराहत की मुद्दत बढ़ाए। हुकूमत ने अपने दौरे हुकूमत में कोई एक भी काबिल कदर काम नहीं किया। हुकूमत कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दी जाने वाली मराहत की मुद्दत में इजाफा करे। हुकूमत को समझना चाहिए रोजगार मिलेगा तो हालात बेहतर होंगे। अगर इस हुकूमत ने पहली मरतबा कोई अच्छा काम किया ही था कि कंस्ट्रक्शन के शोबे में ये बात वाज़ेह की गई थी कि जो लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे उनसे टैक्स के बारे में नहीं पूछा जाएगा, तो कुछ लोगों ने इसके ऊपर काफ़ी बिजनेस किया, लेकिन अब 31 दिसंबर के बाद इसे ख़त्म करना जा रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की हुकूमत की बहुत बड़ी नाअहली है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़े अफराद का कहना है हुकूमत ये मराहत जारी रखे ताकि रोजगार में इजाफा हो सके। कैमरामैन आमिर शाह और साथी रिपोर्टर जुनैद अनवर के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। दूसरी जानिब आपको बताएं कि सरगोदा में कंस्ट्रक्शन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का पहला तंजीमी इजलास हुआ। मरकजी चेयरमैन सैयद इशफाक हुसैन समेत मुल्क भर से ठेकेदारों की शिरकत। कहते हैं मौजूदा दौर में करप्शन 5% से बढ़कर 15% हो गई है। उनका मजीद का कहना था, देखिए फसीउल्लाह की रिपोर्ट में। लाहौर रोड पर वाक़या अरीना ग्रैंड में कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का पहला तंजीमी इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मरकजी चेयरमैन सैयद इशफाक हुसैन और ज़िली सदर जफर हयात लक समेत मुल्क भर से ठेकेदारों ने शिरकत की। इस मौका पर ठेकेदारों का कहना था कि फंड्स देने में सरकारी महकमों की जानिब से ब्लैकमेल किया जाता है। मौजूदा हुकूमत मुल्क की तामीर और तरक्की में संजीदा नहीं। मुल्क में बेहतर तामीर और तरक्की हो सके, और जो आज बड़ा ये फंक्शन था स्पेशली ये इन्हीं मामलात के लिए सारे पाकिस्तान से लोग इकट्ठे हुए हैं ताकि हम अपने मामलात को अच्छी तरीके से हल कर सकें। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के अहदेदारों ने पहला तंजीमी इजलास मुनक्किद करने पर मुबारकबाद दी। हमने आज एक सरगोदा में कंस्ट्रक्टर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का तंजीमी इजलास मुनक्किद किया है, जिसका मकसद है हमारी यकजहती कंट्रैक्टर के मसाइल के लिए सबको इकट्ठा करना। इस मौका पर दीगर ठेकेदारों की जानिब से हुकूमती पॉलिसियों को आड़े हाथों लिया गया। कंस्ट्रक्टर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के अहदेदारान ने मौजूदा हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि करप्शन का जो रेट 5% से बढ़कर 15% तक जा पहुंचा है, उसके खात्मे के लिए तब्दीली सरकार अपना बुनियादी किरदार अदा करे। कैमरामैन फैजान खान के साथ फसीउल्लाह, सरगोदा। बच्चों में ग़िज़ाई किल्लत की कमी दूर करने के लिए इनकलाबी इक़दामात। खानेवाल में फूड फोर्टिफिकेशन प्लान के तहत 18 फ्लोर मिल्स में माइक्रो फीडर नस्ब। डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत न्यूट्रिशन एड्रेसिंग कमेटी का इजलास भी हुआ। महकमाना कारकर्दगी का जायजा लिया गया। स्कूलों में साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाने के लिए इक़दाम तेज करने की हिदायत की गई। आपकी हिदायत पर बच्चों में ग़िज़ाई किल्लत की कमी दूर करने के लिए इक़दामात को तेज कर दिया गया। फूड फोर्टिफिकेशन प्लान के तहत 18 फ्लोर मिल्स में माइक्रो फीडर्स नस्ब कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीराबाद शिराजी की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट माल न्यूट्रिशन एड्रेसिंग कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें महकमाना कारकर्दगी का जायजा लेने के साथ नए अहदाफ मुकर्रर किए गए। डिप्टी कमिश्नर ने साफ पानी की स्कूलों में फ्राहमी यकीनी बनाने के लिए इक़दामात तेज करने की हिदायत की। इजलास में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर IRMNCH डॉक्टर शहजाद सरवर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर प्लानिंग एंड शुएब हफीज सियाल, CEO तालीम अल्ताफ हुसैन, जिलाई अफसर महकमा बहबूद आबादी चौधरी मजीब रुबानी, महकमा ज़राअत, फिशरीज, फूड अथॉरिटी और दीगर महकमों के अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि बच्चों में ग़िज़ाई किल्लत दूर करने के लिए वालिदैन को भी आगाही दी जाए। शहर औलिया में तजावुजात की भरमार। शहर की सबसे बड़ी मार्केट मुमताज़ाबाद पर 30 फुट तक तजावुजात कायम है। डबल फाटक, फुटपाथ और सड़क पर रेडी वाहनों का कब्जा है। AC सिटी आबदा फरीद का कहना है कि तजावुजात ऑपरेशन की नाकामी की बड़ी वजह
स्टाफ की कमी है। रिपोर्ट करेंगे गोहर रहमान। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट बनने से मुल्तान की अहमियत में इजाफा हो गया। जनूबी पंजाब भर से शहरी मसाइल के हल के लिए मुल्तान का रुख करते हैं। ऐसे में शहर की सड़कों पर तजावुजात की भरमार के बायस दूसरे शहरों और मकामी लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहर की सबसे बड़ी मार्केट मुमताजाबाद पर 30 फुट तक तजावुजात कायम है, जबकि डबल फाटक फुटपाथ समेत सड़क पर रेहड़ी बानों का कब्जा है। ऑपरेशन वगैरह होते रहते हैं, इनके कारपोरेशन वाले आते हैं जिस टाइम ऑपरेशन होता है, फिर ये है कि इनके रेडी वाले जो आगे पीछे हो जाते हैं, जिनका सामान वगैरह कईयों का उड़ जाता है, फिर आ जाते हैं। एसी सिटी आबदा फरीद का कहना है कि तजावुजात ऑपरेशन की नाकामी की बड़ी वजह मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन रेगुलेशन अमले की कमी है, जिसके बायस शहर में तजावुजात ऑपरेशन मुतासिर होता है। कमिश्नर मुल्तान और डिप्टी कमिश्नर तजावुजात ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। मुस्तकिल तजावुजात के खात्मे के लिए मेगा प्लान तश्कील दिया जा रहा है। मुल्तान 22 लाख इसकी आबादी थी 2017 में, अभी डेफिनेटली इट हैज इंक्रीज्ड। तो जो रेगुलेशन ब्रांच के लोग हैं ज्यादा से ज्यादा 15 to 20, दे कीप ऑन डूइंग देयर वर्क, वो रेगुलरली करते रहते हैं। लेकिन एक जगह से आपने एक दफा कर लिया, फॉर एग्जांपल ओल्ड शुजाबाद रोड पे पर्सनली आई हैव सुपरवाइज 3 to 4 ऑपरेशंस। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही हमारी टीम जाती है, हमारी पब्लिक में बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है। शहरियों ने जिले इंतजामिया और एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन से सड़कों को तजावुजात से पाक करने का मुतालबा किया है, ताकि शहर की खूबसूरती बहाल हो सके। कैमरा टीम साथी रिपोर्टर सुहिरा तारिक के साथ गोहर रहमान, मुल्तान। मियांवाली जनरल बस स्टैंड पर नाजायज अड्डों की भरमार हो गई। सफाई सुथराई के नाकिस इंतजाम के बायस गंदगी के ढेर लग गए, जबकि ट्रांसपोर्टर्स ने बस स्टैंड की दीवारें तोड़कर मन मर्जी के रास्ते बना लिए हैं। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मियांवाली जनरल बस स्टैंड में जगह जगह नाजायज अड्डे शहरियों और मुसाफिरों के लिए दर्दे सर बन गए। शहरियों का कहना है कि लोग मन मर्जी की जगह पर गाड़ियां खड़ी कर देते हैं। जनरल बस स्टैंड में सफाई सुथराई के नाकिस इकदाम के बायस बस स्टैंड में गंदगी के भी ढेर लगे हुए हैं। 6 दरवाजे हमारे अड्डे के, लेकिन किसी एक तरह से इंतजामिया का बंदा नहीं खड़ा हुआ। कोई मसला मसाइल यहाँ पर हल नहीं किया जा रहा। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। शहरियों का कहना है कि गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए 2 दरवाजे बनाए गए, लेकिन अड्डा मालकान ने दीवारें तोड़कर मन मर्जी के रास्ते बना लिए, जिसकी वजह से दीगर ट्रैफिक के लिए मसाइल पैदा हो जाते हैं। गड्डियां हाले विच आके खला रहे ने, तो सारे बदमाशी करे ने, गरीब लोगों को कोई नहीं नाल खलोण देना। शहरियों ने मुतालबा किया है कि जिले इंतजामिया मामले का नोटिस लेकर अड्डे के मसाइल को खत्म करे। जनरल बस स्टैंड मियांवाली में नाजायज अड्डों के बायस शहरियों और मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना, मगर इंतजामिया खामोश। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। अलीपुर में ट्रैफिक के मसाइल तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर गए। उधर यजमान में इंतजामिया के दावों तक ही महदूद रह गए हैं। शहरी गंदा पानी पीने पर मजबूर, ये रिपोर्ट देखिए। अलीपुर में ट्रैफिक के मसाइल तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर गए। कोली चौक, इकबाल चौक, फैसल चौक, तहसील रोड, डीएसपी चौक पर घंटों ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। एम्बुलेंसेस को रास्ता मिलना मुहाल हो गया। ड्यूटी पर मामूर ट्रैफिक एहलकार गायब रहने लगे। जिस्मान में इंतजामिया के दावे ठुस, शहरी गंदा पानी पीने पर मजबूर। मुतअद्दिद फिल्ट्रेशन प्लांट बंद, चंद एक फाल, टूटियां गायब, फंगस के बाइस हालत अबतर। प्लांट्स पर सफाई के नाकिस इंतजामात से शहरी परेशान। मियांवाली में ईसा खेल खगलामाला रोड की तमीर के दौरान महकमा हाईवे की नाकिस मनसूबाबंदी। सीवरेज और नहर का उमर खान का पानी घरों में दाखिल हो गया। मकीन घरों में महसूर अहले इलाका ने हुकाम बाला से फौरी इकदाम का मुतालबा कर दिया। रहीम यार खान की दस्तगीर कॉलोनी में सीवरेज का निजाम नकारा, मसरूफ तरीन चौक गंदे पानी में डूब गया। मकीन और राहगीर परेशान। इंतजामिया खाबे खरगोश के मजे लूटने में मसरूफ। कोट मिठन में मरकजी कब्रिस्तान की चारदीवारी टूट फूट का शिकार। जगह जगह गंदगी के ढेर। आवारा कुत्तों की भरमार से कब्रों का तकद्दुस पमाल होने लगा। करीबी रहायशियों ने सीवरेज का गंदा पानी भी कब्रिस्तान में छोड़ दिया। शहरी परेशान। इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। डीपीओ डीजी खान उमर सईद जराइम के खात्मे के लिए मुतहरिक। क्राइम मीटिंग ने पुलिस वर्किंग और मुकदमात की तफ्तीश का मुआयना किया। दूसरी जानिब डीपीओ बहावलपुर हसन मुश्ताक सुखेरा की हासिलपुर आमद थाना सिटी का दौरा किया। डीपीओ डीजी खान उमर सईद जराइम के खात्मे के लिए मुतहरिक। क्राइम मीटिंग में पुलिस वर्किंग और मुकदमात की तफ्तीश का मुआयना किया। पुलिस लाइन में सिक्योरिटी गार्ड्स की ट्रेनिंग का भी जायजा लिया। दूसरी जानिब डीपीओ लिया सैयद नदीम अब्बास की ज़ेर सदारत मीटिंग बैंकों के सिक्योरिटी कैमरे बेहतर बनाने का हुक्म दे दिया। एक हफ्ते बाद बैंकों का सिक्योरिटी ऑडिट भी कराने की हिदायत। डीजी खान में सेक्रेटरी हाउसिंग लियाकत अली चट्ठा का सहूलत बाजार का दौरा। पुरानी सब्जी मंडी में अशिया खुरनोश और दीगर रोजमर्रा इस्तेमाल की बुनियादी अशिया के निर्ख चेक किए और कहा
कहा कि तमाम अशिया के हुकूमती निर्खों को यकीनी बना रहे हैं। मुल्तान को आलूदगी से पाक बनाने का जिला इंतजामिया ने भट्टा मालिकान को अल्टीमेटम दे दिया। भट्टा जात को हर सूरत ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करने के अहकाम। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल कमरुज़्ज़मान केसरानी की ज़ेर सदारत भट्टा मालिकान का इजलास। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सीईओ वेस्ट मैनेजमेंट असद अब्बास मक्सी ने कहा कि उन्हें इदारे का चार्ज संभाले हुए चंद रोज हुए हैं। शहर में सफाई के लिए इनकलाबी तब्दीलियां लाएंगे। 300 मजीद वर्कर्स वेस्ट मैनेजमेंट इदारे में रखे जाएंगे। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी शहर में सफाई के निजाम को बेहतर करने के लिए मजीद मुतहरिक हो गई। सीईओ वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी असद मक्सी ने रोही से गुफ्तगू करते हुए बताया कि 300 मजीद वर्कर वेस्ट मैनेजमेंट पर रखे जा रहे हैं, जिससे सफाई सुथराई में बेहतरी आएगी। अभी फिलहाल हम तकरीबन 300 के करीब जो है 300 जो है हम मजीद ऐड करने जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह उससे जो है हमारी काफ़ी बेहतरी आएगी। सीईओ वेस्ट मैनेजमेंट का मजीद कहना था कि इन्हें चार्ज संभाले अभी चंद ही दिन हुए हैं। सफाई सुथराई के लिए भरपूर हिकमत अमली तैयार कर रहे हैं, निजाम में जिद्दत ला रहे हैं। हम मशीनरी परचेज करने जा रहे हैं, उसके अलावा डस्टबिन वगैरह परचेज करने जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह जैसी वो चीज़ें हमें डिलीवर होना शुरू होती हैं तो आपको एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा और उससे इंशाल्लाह जो सफाई है वो उसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगी। और फर्दर हम इंशाल्लाह टेक्नोलॉजी की तरफ भी जा रहे हैं और इसमें हम अटेंडेंस वगैरह और वो इंश्योर करेंगे कि टेक्नोलॉजी बेस हो। सीईओ वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का कहना था कि शहर में सफाई सुथराई के लिए तमाम शहरियों को भी साथ देना होगा। तमाम लोगों के साथ मिलकर शहर से गंदगी का खात्मा करेंगे। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ मोहसिन उल मुल्क, डीजी खान। डीजी खान बॉर्डर मिलिट्री पुलिस लाइंस में रेंजर्स से ट्रेनिंग हासिल करने वाले जवानों को सर्टिफिकेट तकसीम करने की तकरीब हुई। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस को पहली बार रेंजर्स की जानिब से 1 माह की ट्रेनिंग दी गई। डेरा गाजी खान में पंजाब रेंजर्स से ट्रेनिंग हासिल करने वाले बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के जवानों को सर्टिफिकेट तकसीम करने की तकरीब मुनक्किद की गई। कमिश्नर डीजी खान डॉक्टर इरशाद अहमद, पॉलिटिकल असिस्टेंट हमजा सालिक, आरपीओ फैसल राना, डीपीओ उमर सईद मलिक और रेंजर्स के ऑफिसर्स ने शिरकत की। बीएमपी जवानों की जानिब से शर पसंदों को पकड़ने का अमली मुजाहरा भी किया गया। ये जो दस्ता हमारा ट्रेन हुआ है, इंशाल्लाह ये अब पूरे फख्र के साथ हम कह सकते हैं कि हम हर ऑपरेशन में जो कामयाब होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, बीएमपी जिंदाबाद। पॉलिटिकल असिस्टेंट बॉर्डर मिलिट्री पुलिस हमजा सालिक का कहना था कि पहली मर्तबा रेंजर्स की जानिब से जवानों को ट्रेनिंग दी गई। उनका कहना था कि बीएमपी और बलोच लेवीज के दीगर मुलाजमीन को भी ट्रेनिंग कराई जाएगी। ट्रेनिंग करवाई है तकरीबन 1 महीने की हमारी जो है ना ऐसे लड़कों की जो अनट्रेंड थे, 17A वगैरह की भर्तियां थी, तो बड़ी अच्छी ट्रेनिंग हम साथ साथ देखते रहे हैं। तो बड़ी अच्छी ट्रेनिंग करवाई और अभी इंशाल्लाह इस तरह आगे मजीद भी बैचेज आते रहेंगे। ट्रेनिंग हासिल करने वाले बीएमपी के जवानों का कहना था कि 1 माह की ट्रेनिंग में उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। फील्ड में उन्हें ये सब बहुत काम आएगा। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस डेरा गाजी खान को पहली मर्तबा रेंजर्स की जानिब से ट्रेनिंग करवाई गई है। इससे जवानों के हौसले भी बुलंद दिखाई देते हैं और पीए जो बॉर्डर मिलिट्री पुलिस है उनका कहना है कि रिफ्रेशर कोर्सेज का इनेकाद इस तरह से करवाता जाता रहेगा। कैमरामैन रेहान अली के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। बेनजीर भुट्टो शहीद की 13वीं बरसी के हवाले से डिस्ट्रिक्ट बार में वकला की तकरीब का इनेकाद किया गया। सीनियर रहनुमा हबीबुल्लाह शाकर की क़यादत में मुनक़िदा तकरीब में भुट्टो खानदान की जमहूरियत की बका के लिए कुर्बानियों को सराहा गया। मजीद देखिए महर इमरान की इस रिपोर्ट में। लायर्स फोरम जिला मुल्तान के जेर एहतमाम साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो शहीद की बरसी के सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट बार हाल मुल्तान में तकरीब मुनक़िद की गई। तकरीब की सदारत सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी हबीबुल्लाह शाकिर ने की। सीनियर वकला सैयद अत्थर शाह बुखारी, शेख गयासुल हक, नवीदुर रहमान हाशमी, अजीज अहमद, नशीद आरिफ गोंदल और मुमताज हुसैन कुरैशी समेत दीगर ने भी खिताब किया। वकला का कहना था कि आज हुकूमत में बैठे लोग समझ लें कि आज अगर जमहूरियत की जीत हो रही है तो ये मिसाके जमहूरियत की मरहून मिन्नत है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सियासत में बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद जो खला पैदा हुआ वो शायद कभी पूर्ण ना हो सके। इस खानदान को ये आदत है, ये रवायत है इनकी, इनका ये खासा है, इनके हिस्से में ये बात आई है कि हमने अपने वतन की खातर, अपने धरती की खातर, अपने वज़ीफ की खातर, अपने मेहनत कश अवाम की खातर, मजलूम लोग की खातर शहीद होना। ये शहीद होने पे यकीन रखते हैं। इस मौके पर पीपल्स पार्टी के हामी वकला का कहना था कि बेनजीर भुट्टो की शहादत पीपल्स पार्टी के अलावा पाकिस्तान के लिए भी बड़ा नुकसान साबित हुई है। हम खराज तहसीन पेश करते हैं मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब को, जिन्होंने पाकिस्तान में
एटम बम चलाने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। वो बतौर वजीर आजम पाकिस्तान मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में लाई और आज दुनिया के कोई भी हमारा दुश्मन इस खित्ते को बुरी नजर से नहीं देख सकता। तकरीब में सीनियर वकला में मिर्जा अजीज अकबर बेग, इरफान वाई, अरशद वकास छजड़ा, रियाज गिलानी, शेख गयासुल हक, महार इकबाल सरगाना, मलिक अल्ताफ रा, अजीमुल हक पीरजादा, फिरोजा फैज, आहद गोंदल, जवार कुरैशी, मलिक मुरीद हुसैन, राना इकबाल नून, राना मिराज खालिद, सफदर सरगाना, वसीम खान बाबर, नजमा जट रा और फिरदौस जमाल समेत दीगर ने शिरकत की। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ महार इमरान नवाज, मुल्तान। मोहम्मद बिन कासिम ब्लाइंड सेंटर की जानिब से कार्ड डे के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। मेहमान खुसूसी CTO मुल्तान जफर बुज़दार और चेयरमैन PHA एजाज जंजुआ थे। तकरीब में नन्हे बच्चों ने तकारीर करके सबके दिल जीत लिए। मोहम्मद बिन कासिम ब्लाइंड सेंटर में काइड डे के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें नाबीना बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब का आगाज नाबीना बच्चों की जानिब से तिलावत कुरान पाक से हुआ। बच्चों ने कायद की खिदमत के हवाले से तकारीर भी की। एक फहम फरासत से उसने यूं जज्बों की क़यादत की, वो कायदे आज़म कहलाया, वो बानी पाकिस्तान बना, वो बानी पाकिस्तान बना। तकरीब के मेहमान खुसूसी चेयरमैन PHA एजाज जंजुआ, CTO मुल्तान जफर बुज़दार और समाजी रहनुमा ताहिरा निजम थी। CTO मुल्तान जफर बुज़दार का कहना था कि कायदे आज़म जैसा लीडर आज तक पैदा नहीं हुआ। हमें फख्र है कि हमारी नई नस्ल इनकी खिदमत को याद रखे हुए है। माजूरी नो डाउट इंसान के जहन में होती है, उसकी अकल में होती है, तो यहाँ पे आके मुझे ये महसूस हुआ और ये मैंने यकीन भी कर लिया कि यहाँ पे जो लोग हैं, जिस तरह 1 रुपया भीख मांगने से बेहतर है कि 1 रुपया कमाया जाए, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये आज़म वाले लोग हैं। ब्लाइंड सेंटर की चेयरपर्सन सादिया किरमानी का कहना था कि हर साल काइड डे के हवाले से ये तकरीब इसलिए रखी जाती है ताकि हम अपनी आने वाली नस्लों में कायद का पैगाम पहुंचा सकें। तकरीब के इख्तिताम पर काइड डे के हवाले से केक काटा गया और नाबीना बच्चों में सफेद छड़ी भी तकसीम की गई। कैमरामैन AD नवाज के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा मजा, तो यार दिसंबर के बाद आएगा। सर्द शामें दिसंबर में ही याद आती हैं। गुजरे पल याद करने के लिए शहरी दोस्तों के हमरा कुछ लम्हात तलाश करते हैं। मुल्तान के बासी दिसंबर की यादें कैसे मनाते हैं, देखिए वसीम शहजाद की खुसूसी रिपोर्ट। शायर राहत तंदूरी कहा करते थे, सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा मजा, तो यार दिसंबर के बाद आएगा। मगर शहर मुल्तान के बासियों ने इस शेर को एक साइड पर रखकर दिसंबर में ही एंजॉय करना शुरू कर दिया है। दिसंबर की खनकी माइल शामें शहर मुल्तान के बासी कैसे गुजारते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। दिन भर के थके शहरी सर्द शामों को यादगार बनाने के लिए मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स का रुख कर लेते हैं। खाने के टेबल पर गुजरा हुआ पल इनकी गुफ्तो शनीद का हिस्सा होता है। इसी असना में खाने के टेबल पर मुख्तलिफ पकवान सज जाएं तो शहरी इसे किसी नेमत से कम नहीं समझते। जो है तो दोस्तों के साथ ही होती है, सर्दी मौसम में और मजा आया आते हुए, हमें एक दूसरे के साथ घूमते हुए और यहाँ पे लेके आए, एक दूसरे के साथ घूम रहे हैं हम लोग, मजा आ रहा है हमें। ये कलमी टिक्का बना रहे हैं, मलाई बोटी है, टिक्का, हमारे पास लेबनीज कबाब हैं, बहुत अच्छे अलग किस्म के टेस्टी होते हैं, बहुत प्यारे हैं, लोग खाते हैं, एंजॉय करते हैं। ख्वाबों के शौकीन अफराद ज्यादातर देसी कढ़ाई पसंद करते हैं। मुख्तलिफ किस्म के पकवान खाने के बाद शहरियों की शुरू होती है बारबेक्यू पार्टी, जहाँ पर कोयलों पर मुख्तलिफ किस्म के बारबेक्यू बनते हैं जिसे शहरी खूब इंजॉय करते हैं। दिसंबर के रोमानवी मौसम में जैसे जैसे सीख पर कबाब और टिक्का सुलगता है, शहरियों की भूख भी बढ़ती रहती है। अगर म्यूजिक का तड़का लग जाए तो लम्हात मजीद खूबसूरत बन जाते हैं। सर्दी बहुत है और सर्दी को एंजॉय कर रहे हैं, फ्रेंड के साथ आए हैं, खाना खा रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। घरों के पकवान हो या होटल का खाना या फिर बारबेक्यू, शहरियों का मकसद थकावट भगाने के साथ साथ ग़िज़ाइयत हासिल करना होता है। दिसंबर के खनकी माइल मौसम की सर्द शामें हों और दोस्तों के हमरा इंजॉय न किया जाए, ये कैसे मुमकिन है। यही वजह है कि शाम ढलते ही शहर ओलिया के बासी अपने दोस्तों के हमरा मुख्तलिफ किस्म के पकवान के मजे लेने के लिए मुख्तलिफ ढाबों पर पहुंच जाते हैं। कैमरामैन आमिर शाह के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।